Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our fourth lecture of maths. So are you ready for that? So let's start. This week we are going to read and understand chapter number 9, which is algebraic expressions. To cover this topic, we need to understand this exercise. Exercise 9.1, page number 112. Exercise 9.2, page number 116. Exercise 9.3, page number 118. Exercise 9.4, page number 120. And exercise 9.5, page number 122. Now students, our topic is algebraic expressions. To understand this topic, first we need to understand what is algebra. So, algebra is the part of mathematics in which letters and symbols are used to represent numbers and quantities in formula and equations. इसको आप उर्दू में समझें. एल्जब्रा इज़ द पार्ट, यानी एल्जब्रा जो है वो मैथ्स का ही एक हिस्सा है जिसमें क्या यूज़ हो रहा है, लेटर्स कौन से, यस, ABCD, ठीक है. लेटर्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड, उसमें लेटर्स एंड सिंबल्स यूज़ होते हैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर्स और कुछ क्वांटिटीज़ को यूज़ करने के लिए वी आर यूजिंग letters and symbols. So inshallah we will continue this and you will understand it very thoroughly. So before starting algebra, we need to understand some important points. So here you can see 4x square. How you will read this? 4 is known as coefficient, x is known as variable, and the 2 is known as power or exponent. Now here you can see x plus y, and this stands for the sum. Sum means addition and is read as x plus y. Now here x minus y stands for their difference, means subtraction, and is read as x minus y. Now here x multiply by y or xy is the product of x and y and is read as x multiply by y. And the number 4, x divided by y or x upon y is the quotient of x and y and is read as x divided by y. Now students, it's a time for exercise 9.1, page number 112, question number 1, 1 till 6. Now I am reading question number 1 for you. Write the following into symbolic form. So what is symbolic form? You have to write in numbers. Sum, now I am doing question number 5 for you. Sum of 2 and 4. What do you mean by sum? SUM, sum. Yes, it means addition. So, how you will write it? You can write 2 plus 4 and this is your answer. Now, question number 6. Difference of 9 and 5. So, what is the meaning of difference? Difference means minus. So you can write 9 minus
5. Very simple. Here are some home assignments. Complete the question 1, 2, 3, 4. Now students, question number 2 of the same exercise. Write the following into words. You will understand this. Now question number 1. 8 plus 3. How you will write in words? Yes, with the spellings. 8 plus 3. This is your answer. Now question number 2. 7 minus 2. You can write in words 7 minus 2. And this is also your answer. Very simple. Okay. Now do some home assignments. Complete the question 3, 4, 5 and 6. Now here you stop your video and complete the both home assignments and then again start your video for exercise 9.2. So students, I hope you all understand exercise 9.1 and complete your home assignment. Now exercise 9.2, page number 116, question number 1 till 6. Here, write the following in exponential form. You remember what is exponential form? Yes, exponent or power. Now question number 1. Here is written 4 multiplied by 4 multiplied by 4 multiplied by 4 multiplied by 4. So how many 4s you found here? Yes, 5 4s. So instead of writing 5 times, we will write in exponential form, and that is 4 power of 5. And this is your answer, and this is the exponential form. Now see question number 6. Here you are watching P dot 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 P. So dot means also multiply. So how many P you find here? 8 P's. Yes. So how you will write it down? P power of 8. Understand it? I hope you all understand it. So now this is the home assignment. Complete the question 2, 3, 4 and 5. Now students, it's time for exercise 9.3, page number 118, question number 1 till 8. This is very interesting exercise. Now I am reading the question 1 for you. If A is equals to 2 and B is equals to 4 and C is equals to 1, then find the value of the following expressions. First you need to understand the question. चलें इसको उर्दू में समझते हैं. यहाँ आपको कुछ वैल्यूज़ दी हैं कुछ वेरिएबल्स की, जैसे A इज़ इक्वल्स टू 2 एंड B इज़ इक्वल्स टू 4 एंड C इज़ इक्वल्स टू 1. हमें इस सम में क्या करना है, चलें हम देखते हैं. नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू. 2A प्लस 3B माइनस 4C. सॉल्यूशन. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें सिंपल अपने वेरिएबल्स की जगह उनकी वैल्यूज़ को पुट करना है और फिर उसके बाद जहाँ पर जो साइन है उससे उसको, अगर एडिशन है तो एडिशन करेंगे, अगर माइनस है तो माइनस करेंगे. चलें देखते हैं इसमें वैल्यूज़ कैसे पुट हो रही हैं. 2A प्लस 3B माइनस 4C. इसके सॉल्यूशन में जब हम स्टार्ट करेंगे तो टू की जगह पर 2 आएगा, बट A की जगह पर अब A नहीं आएगा बल्कि उसकी वैल्यू आएगी जो कि है 2. यस.
ठीक है, हमने एक ही प्लेस पे उसकी वैल्यू को पुट किया और ब्रैकेट लगा दिया। नाउ द साइन ऑफ एडिशन। ठीक है, फिर नंबर उसके बाद क्या आ रहा है? 3 एज इट इज़ आ गया। 3 के बाद क्या है? बी। तो बी में हम क्या करेंगे? यस, यहाँ पर हम बी की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि है 4। इसको भी हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में माइनस का साइन है, वो हमने माइनस का साइन पुट किया। फिर हमने 4 लिखा और सी की जगह पर 1 को रख दिया इन द ब्रैकेट। नाउ द सेकेंड स्टेप, वी विल ओपन द ब्रैकेट। और जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के साथ ही वो नंबर उस नंबर से मल्टीप्लाई होता है। अगर ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने जब ब्रैकेट को ओपन किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में रख दिया। फिर एडिशन का साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 4, इन दोनों को भी हमने एक ब्रैकेट में कर दिया। एंड -4 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको भी हमने ब्रैकेट में कर दिया। नाउ अब हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट खुद ब खुद ओपन हो गए। 2 2 ज़ा 4 प्लस का साइन, 3 4 ज़ा 12 माइनस का साइन, एंड 4 1 ज़ा 4। This is your third step complete. Now you see the first two words 4 plus 12. हमने 4 को 12 में हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आया 16, और जो -4 था उसको हमने एज इट इज़ उसके साथ उतार लिया। इसको माइनस हम सेकंड स्टेप में करेंगे। जब हमने सेकंड स्टेप में उसको माइनस किया तो वी विल गेट द आंसर ऑफ 12। आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बी क्यूब। इसकी पावर को हम क्या पढ़ते हैं? 3 को क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? बी की क्या वैल्यू है? बी की वैल्यू है 4, और बी के ऊपर क्या लिखा है? 3। तो हमने b की जगह 4 को लिखा, ब्रैकेट में क्लोज किया और 3 को उसकी जगह पर ही लिख दिया। फिर आया माइनस का साइन फ्रॉम द क्वेश्चन, एंड फिर हमने c की वैल्यू लिखी। c की क्या वैल्यू है? 1। उसको भी हमने ब्रैकेट में क्लोज किया और ऊपर क्या लिख दिया? उसकी पावर क्यूब। अब इस पावर का मतलब आपको पता है, हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में किया है। अगर किसी भी नंबर पर पावर जितने भी नंबर की होगी वो उतने ही टाइम अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हमने इसको, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमने इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। 4 के ऊपर जब 3 की पावर है तो इट मीन्स कि 4 विल मल्टीप्लाई बाय इट्स नंबर 3 times. You can see in step number 2, 4 multiplied by 4 multiplied by 4. इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज किया। माइनस का साइन क्वेश्चन में से चला आ रहा है, ये माइनस का साइन हमने पुट कर दिया। अब 1 के ऊपर भी 3 की पावर है तो क्या करेंगे? यस, 1 को भी 3 times ही मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? अपने ही नंबर से करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। नाउ अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। ये आपने तीनों को मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट आपका ओपन हो गया, ब्रैकेट ख़त्म हो गया। माइनस का साइन फ्रॉम क्वेश्चन। ठीक है, अब 1 को आप अपने नंबर से अगर कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लें आपका आंसर 1 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाय 1, right? So 64 minus 1. So your answer is 63. This is your answer. Now here are some home assignments. Complete the question 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now students, exercise 9.4, page number 120, question number 1 till 10. In this question,
we are going to simplify. I am doing number 7 and number 10 for you. Now what is written in question number 7? I am reading for you. 8y minus 5y plus y. Here you can see all the numbers with the same variable. This is y. Y, 8y, 5y and plus y. इसको देखने से आपको क्या लग रहा है? यस, जब भी कोई वेरिएबल बार बार रिपीट हो रहा है तो ये जो वेरिएबल हैं, ये जो नंबर्स हैं, आपस में लाइक टर्म्स बन जाते हैं. अगर इनमें कहीं पर भी एक x आ जाता या z आ जाता तो फिर ये लाइक टर्म्स नहीं रहते, ये अनलाइक हो जाते. और लाइक टर्म्स आपस में प्लस और माइनस हो जाते हैं और अनलाइक टर्म्स यानी कि x और y आपस में प्लस माइनस नहीं होते. ठीक है, लाइक टर्म्स क्या होती हैं? जिनके वेरिएबल सेम होते हैं वो लाइक टर्म्स होती हैं. x से प्लस होता है और माइनस होता है, y से प्लस होता है और माइनस होता है. इसी तरह से कोई भी वेरिएबल किसी भी वेरिएबल से प्लस माइनस नहीं हो सकता, सिर्फ वो अपने ही वेरिएबल से माइनस और प्लस हो सकता है. So this is very simple exercise. So let's start question number 7. 8y minus 5y plus y. Your solution is, we will do, we will first do the steps of two words. 8y minus y plus y को हम शुरू के दो नंबर्स को पहले प्लस करेंगे या माइनस करेंगे. तो 8y और 5y क्या हो रहे हैं? 8y माइनस 5y. इट मीन्स 8 में से 5 को जब हमने माइनस किया तो हमारा क्या आंसर आया? 3y. और फिर हमने जो नेक्स्ट स्टेप में था प्लस y को एज इट इज़ उतार लिया. अब हमारे पास है 3y प्लस y एंड y मीन्स 1y. हम 1 को कभी भी मेंशन नहीं करते हैं. जब कोई भी वेरिएबल बग़ैर नंबर के होता है इट मीन्स कि उसके साथ 1 लगा है. अब 3y को y से प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 4y. वेरी गुड, एंड दिस इज़ योर आंसर. Now question number 10. Here you can see also the like terms. 9q plus q minus 5q. Now what we will do in the solution? 9q plus q minus q. इसमें पहले हम 9q और q को प्लस करेंगे. 9q plus 1q is equals to 10q. And minus 5q will be write it down as it is. अब यहाँ पर 10q में से माइनस q को जब हमने माइनस किया तो what is the answer? Yes, 5q. And this is your answer. Now here are some home assignments. Complete the question. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 9. Students, before starting exercise 9.5, you need to do all your home assignments of your previous exercise. So now we are starting exercise 9.5, page number 122, question number 1, 2, 5, 6, 7 and 8. Now question, add the following expressions horizontally. Okay, now question number 1. Here you can see 2x plus 4y, comma 6x plus 5y. ओके, यहाँ इसको हम उर्दू में समझते हैं. यहाँ हमें कुछ लाइक टर्म्स नज़र आ रही हैं और कुछ अनलाइक टर्म्स नज़र आ रही हैं. इट मीन्स कि 2x एंड 6x आर द लाइक टर्म्स. ठीक है, और 4y एंड 5y आर द लाइक टर्म्स. तो अब इसको देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे होगा. नाउ व्हाट वी विल डू इन द फर्स्ट स्टेप,
हमने जो हमारे पास टर्म्स हैं 2x + 4y को हमने ब्रैकेट में रखा और हमने इनको क्या करना था, ऐड करना था। तो हमने ये एडिशन का साइन अपने पास से लगाया है और फिर 6x और +5y को भी हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। नाउ व्हाट वी विल डू? यस, नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट। 2x + 4y + 6x + 5y। यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, हमने क्वेश्चन में हमारे पास क्योंकि बीच में कॉमा था तो हमने एडिशन का साइन लगाने के लिए हमने इन दोनों टर्म्स को पहले हमने ब्रैकेट में क्लोज किया और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में उसको ओपन कर दिया। अब हमारे पास अनलाइक और लाइक टर्म्स एक साथ आ गई हैं। तो अब इस स्टेप में हमें लाइक टर्म्स को अरेंज करना है और दो लाइक टर्म्स को एक साथ प्लस करेंगे, क्योंकि लाइक टर्म्स x से प्लस होगा और y से प्लस या माइनस होगा। तो जो x की टर्म्स हैं उन दोनों को हमने साथ लिखना है। तो देखें, थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, 2x + 6x। ठीक है, हमने क्या किया, 4y नहीं लिखा बल्कि 2 के साथ, क्योंकि x है तो उसकी सेकंड जो लाइक टर्म्स हैं वो हैं 6x। तो हमने 2x और 6x को एक साथ लिखा। ठीक है, और इसका साइन जो है वो भी 6x के साथ ही आएगा, यानी प्लस का। अब यहाँ पर है +4y। ठीक है, और फिर इसके साथ हमने क्या लिखा, +5y। अब लाइक टर्म्स विल ऐड ईच अदर। तो 2x को 6x से जब हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आया 8x, और 4y एंड 5y को जब हमने ऐड किया तो आपका आंसर आया 9y। एंड दिस इज़ योर आंसर। जो प्रीवियस लेक्चर्स में जो मैंने आपको बताया था कि x और y को जब हम ऐड करेंगे तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, ये कभी भी मर्ज नहीं होंगे और ये कभी भी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सो दिस इज़ योर आंसर 8x + 9y। अब ये मज़ीद ऐड नहीं हो सकते। दिस इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Yes, here you can see 3 terms. One is of power. Now we will see. I am reading the question for you. 9y², 2 की पावर को हम स्क्वायर पढ़ते हैं, +4y +5, then comma y² +10y -3। ओके, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इन दोनों टर्म्स को हम अलग अलग ब्रैकेट में लिखकर बीच में एडिशन का साइन लगाएंगे। 9y² + 4y + 5 in the bracket and put the sign of addition, and then y² + 10y -3 we will also put the bracket. In the second step we will open the bracket और ये नंबर सारे as it is उतर जाएंगे। 9y² + 4y + 5 + y² + 10y -3। नाउ थर्ड स्टेप में हमें लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। तो पावर की जो टर्म्स हैं वो दो पावर जो जिनके साथ पावर है वो लाइक टर्म्स हैं, जिनके साथ सिर्फ y है वो दोनों लाइक टर्म्स हैं, और जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो भी आपस में लाइक टर्म्स हैं। सो सी क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 4। 9y², इसके साथ जो लाइक टर्म है वो है y², जिसको हम वहाँ से उठा के लेके आए हैं उसके साइन के साथ, और हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो दोनों स्क्वायर्स की टर्म साथ आ गई। ओके, नाउ अब दूसरी लाइक टर्म्स क्या है? 4y की लाइक टर्म क्या है? यस, +10y। ओके, हमने इन दोनों को साथ लिखा। अब नंबर थर्ड बचा है +5। तो +5 की लाइक टर्म क्या होगी?
यस, -3। तो हमने +5 और -3 को एक साथ लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लाइक टर्म्स ही प्लस माइनस होंगी आपस में। 9y² एंड y² और y के साथ कोई नंबर नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है। तो 9 में जब 1 को प्लस किया तो योर आंसर इज 10y²। अब पावर प्लस नहीं होंगी, ठीक है, पावर जो है वो वही रहेंगी जो हैं। नाउ द सेकेंड वन 4y + 10y। 4 में 10 को प्लस किया 14y। एंड नाउ 5 - 3, so your answer is 2. Now this is your answer, 10y² plus 14y plus 2. So this is your answer, and this will not be add or subtract with each other. Now here are some home assignment. Complete the question 2, 5, 6 and 7. I hope you all understand it. Do the home assignment very clear. Thanks for watching, students.